1947, all the freedom fighters were nationalists, not patriotic. Oh. They were not patriotic, they were nationalists. They wanted to create a nation. Create a nation. And having created a nation, then there is an urge to connect to the nation. That is patriotism. फर्क समझ में आ गया क्या? Patriotism और nationalism में तो फर्क समझ में आने वाला. मतलब up to 1947 all those, then गोडसे तो बाद में की बात है, पर भगत सिंह, आजाद, गांधी, Gangadhar Tilak, they were all nationalists. Because there was no allegiance to a nation as a concept, because it did not exist. Exactly. Because it came into existence in 1947. Yeah. हाँ, पर वो जो पेशवा के जमाने में 1817 की जो लड़ाई या कुछ ब्रिटिश लोगों ने हासिल किया होगा, वो तो बगावत कहते हैं या फिर पहली नेशनलिस्ट लड़ाई कहते हैं. स्वातंत्रता का पहला समर भी कहा जाता है या फिर बगावत भी, म्यूटिनी कहते हैं. तो ये म्यूटिनी है या फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, वो तो दुर्भाग्य से इतिहास विनर्स ने लिखा है, लूजर्स ने कभी नहीं. The one who won has always wrote the history. And after 1947, those who were in the power also defined the patriotism. Because those who rule decide and define. Or defiance to the establishment is taken as a dissent, disagreement, at times disrespect, at times anti-nationalism, and times anti-patriotism. It all depends. There was a crescendo after Second World War. इधर से राजद हिंद फौज तैयार हो गई, इधर से चले जाओ, क्विट इंडिया मूवमेंट चले हो गई, कुछ लोगों ने और कुछ किया, कुछ लोगों ने और कुछ किया, और जिन्होंने राज किया उसने बोला क्विट इंडिया के कारण राज मिल गए. लिखते हैं इतिहास, और हमने भी रट लिया वो इतिहास को कि चलो भारत छोड़ो बोला तो वो भारत छोड़ के चले गए. What is citizenship? Do you know what is citizenship? Yes. Are you citizen? Yeah, I am born and brought Oh, up. because you are born in India, you say you are a citizen. Wonderful, got this. This is the definition of citizenship. Because I am born in India, I am the citizen of India. I am not talking about the citizenship as a legal document. I am asking you citizenship as a concept. And my question to you is, are you a citizen of India as a concept of citizen? Have you understood the word citizen? मेरी बात को समझ रहे हो क्या? अभी तक हम सिटीजन हुए ही नहीं है, दुर्भाग्य. हम हिंदू इसलिए कि मेरे माँ बाप हिंदू है, ना मैंने कभी गीता पढ़ी, ना पुराण पढ़ा, ना वेद पढ़े, फिर भी हिंदू कह रहा हूँ. The Constitution of India, when it was framed by Baba Saheb Ambedkar and delivered to the nation on 26 January 1950, the secular word was not there in Constitution of India. Do you know this? Yes. Sir, Do you know this? My question. Yeah, I know. When was it inserted? I think after 2 or 3 years. No. You know. No. Check your facts. सेक्युलर शब्द को समानार्थी शब्द का हिंदी में, तो उन्होंने कहा सेक्युलर शब्द को कोई शब्द नहीं है, ये कंसेप्ट है. फिर भी अगर आपको कहना ही है तो आप उसको पंथ निरपेक्ष कहिए. पंथ निरपेक्ष. पर उन्होंने धर्म निरपेक्ष डाला जानबूझ के, रूलिंग आउट द लीगल एडवाइस फ्रॉम सिंघवी हु वाज अ लीगल एक्सपर्ट लिमिनरी दैट टाइम. वो अभिषेक मनु सिंघवी के पिताजी, अभी अभिषेक मनु सिंघवी वकील है, वो कांग्रेस से मिलते जुलते विचारों के हैं. आप मेरी बात को समझ रहे क्या? जब हम ऐसे विषयों को हाथ लगाते हैं तो हमारे पास जानकारी पूरी होनी चाहिए. Exactly. तो क्या होता है, इंप्रेशन पे तो हम बात कर ही देते हैं, और आज के तारीख में जो कुछ चल रहा है वो सब इंप्रेशन पे चल रहा है. तो सिर्फ फैक्ट जानने के लिए तो टॉपिक लिया. मैं कह रहा हूँ कि इंप्रेशन पे चल रहा है और हम इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए कोशिश नहीं कर रहे. इंप्रेशन के ऊपर हम अपनी इंप्रेशन दे रहे हैं. आपको कहते क्या वी आर ओनली ऑफरिंग अवर इंप्रेशन ऑन द इंप्रेशंस. एंड आई वुड से दिस इज द मोस्ट अनपैट्रियोटिक वर्क वी आर डूइंग. Most unpatriotic work. I might call myself patriotic, but when I say I am patriotic, I have duties more than the rights. Yes. The soldier is patriotic because he is ready to put his life at stake for the nation. Then he is patriotic. It is not मेरा खाना पीना हो जाए अभी मैं patriotic हूँ, और ये कांदे के भाव बढ़ गए अभी मैं patriotic हूँ. नहीं, वो patriotic हो मतलब मैं कांदे बड़े भी हो गए तो मैं खाऊंगी और देश के हित के लिए काम करूंगी. तेव्हा patriotic nationalist बिल्डिंग बांधली थी, तेव्हा नेशनलिस्ट मूवमेंट जब बढ़ रही थी तो विदेशी मालाची होई, मतलब फॉरेन गुड्स को जला दे रहे थे. इट वॉज नॉट पैट्रियोटिक, इट वॉज अ नेशनलिस्ट एक्ट. पैट्रियोटिज्म ये तो माकड़ की कहानी थी ना, बंदर की कहानी. वो बच्चे को तब तक सर पे पकड़ के रखा जब तक उसके नाक में पानी नहीं घुसा. जिस दिन मेरे नाक में पानी घुसा तो मैं नीचे. आम्बेडकर ने कहा था 10 साल के ऊपर रिजर्वेशन मत रखना,
आम्बेडकर ने सेक्युलर शब्द डाला ही नहीं था। आम्बेडकर ने 370 आर्टिकल के विरुद्ध वोट करके रखा था, और आम्बेडकर के नाम से सब बिल फाड़ रहे हैं आजकल। एग्जैक्टली सर, सब बिल उनके नाम पे फटे जा रहे हैं। मैं ना आरक्षण के विरोध में हूँ, ना मैं आर्टिकल 370 के विरोध में हूँ, ना पक्ष में हूँ। मैं सिर्फ सच्चाई के पक्ष में हूँ। सच्चाई मैं चाहता हूँ सच्चाई खुलकर ऊपर आ जाए तो पैट्रियटिज्म की बात हो। सिटीजनशिप इज अ कंसेप्ट, citizenship is a concept wherein my individual vested interests are subservient to the national interest. And here everybody has his regional interest, religious interest, linguistic interest, personal interest, caste interest, and then we call it ourselves a citizen. Nice. आप मेरी बात को समझ रहे? मेरे व्यक्तिगत इंटरेस्ट से सबसर्विएंट हो। और अगर मैं सेक्ट की बात कर रहा हूं कि चलो ये एक क्या तृणमूल द्रमुक कड़गम पक्ष, एक तेलुगु देशम पक्ष, एक और कोई महाराष्ट्र नवनिर्माण पक्ष, ये सब पक्ष सिटीजनशिप नहीं प्रोपोगेट कर रहे हैं, ये रीजनलिज्म प्रपोज कर रहे हैं। कौन से सिटीजनशिप की ये लोग बात करें? फिर कोई एक मुस्लिम लीग तो एक हिंदू वाहिनी, अरे ये कौन से सिटीजनशिप की बात कर रहे हैं? जब हमने और जब हम इक्वलिटी की बात करते हैं, इक्वलिटी की बात करते हैं, तो कैन देयर बी माइनॉरिटी इन इक्वलिटी? आई एम जस्ट रेजिंग अ बेसिक इशू। इफ आवर नेशन looks at all the religion and all the people as same and equal, can there be minor now? No. Discussing minority and equality is a sin. It's a crooked thing. It is a manipulation. Yes. It is being imposed on us. Yes. I am not against majority and minority. The issue is, are we discussing it with truth, honesty and facts? Yes. Or are we discussing with emotions, churning up the feelings, some role models, and then सबसे पैट्रियटिक लोग वो है जो वर्दी पहनते हैं। ये भारत माता की जय इस तरीके से चिल्लाया जाता है, ऐसा लगता है यार मेरे कान के सामने मत चिल्ला। एंड दे वांट मी टू शाउट विथ हिम। मैं सोचता हूँ यार मुझे बख्श दे। भारत माता की जय बोलने से भारत माता की जय नहीं होती है, मेरे जहन में से होती है होनी है। तो उसके लिए जय और मुर्दाबाद की क्या बात चल रही है? और ये एक है ये कि भारत माता की जय करके चिल्ला रहा है, दूसरा है आजाद आजाद चिल्ला रहा है। मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये क्या हो रहा है। मुझे तो दोनों ही सिटीजन नहीं लग रहे। दोनों सिटीजन नहीं, इसमें पैट्रियटिज्म है ही नहीं। सिटीजनशिप इज अ प्रीरिक्विजिट फॉर पैट्रियटिज्म। अगर आप नागरिक हो तो फिर आप ये बात कर सकते हो। सिविक सेंस नहीं है, हम सिविलाइज नहीं है, और हम सिटीजन कैसे हो जाएंगे? सिविलाइजेशन इज मस्ट। एंड जैसे काका ने कहा, हिंदू वाज नेवर अ रिलीजन, इट वाज अ सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन। एंड टू उनका कैसे हो गया कि पहले ना मुंबई, मतलब बम्बई का नाम पहले मुंबई था। मुंबई का नाम क्यों था? वहां पे मुंबा बोल के देवी है, मुंबा देवी। मुंबा आई मुंबई, मग ते बिहारी यूपी आले बॉम्बई करून टाकलं। मग त्याला अमेरिकन लोकांनी, इंग्रज लोकांनी बॉम्बईचं बॉम्बाई करून टाकलं, ते बॉम्बे झालं। हे अपभ्रंश झाले ना। हमने शब्दों के साथ खिलवाड़ कर दिया, ओरिजिनल शब्दों को भूल गए, शब्दों के साथ खिलवाड़ हो गई है, और वैसे कंसेप्ट के साथ भी खिलवाड़ हो गई है। और आज पैट्रियटिज्म शब्द चर्चा करने के लिए तो ये चेंबर में बैठ के चर्चा करने का विषय नहीं है, तो हमारे हरकतों से। मैं अगर मेरे देश पे प्रेम करता हूं, देखिए हम फैमिली में रहते हैं, तो फैमिली में रहते हैं तो एक में के प्रति अगर प्रेम हो तो फैमिली है, और अगर एक में के प्रति प्रेम नहीं हो तो फैमिली नहीं है। देयर आर 5-10 इंडिविजुअल्स स्टेइंग अंडर वन रूफ। दो सोसाइटी रूप देम एज फैमिली, बट देयर इज नो लव, लव इज नॉट एक्सचेंज, सो इट इज नॉट अ फैमिली। आप मेरी बात को समझ रहे हो? अगर मैं समाज में रहता हूं तो देयर इज दैट सोशल इंटरडिपेंडेंस। एक सामाजिक दायित्व होता है मेरा। एक क्या है, उस कौन सा शब्द यूज करेंगे हम जब अड़ोस पड़ोस को लोगों की चिंता करते? तो फिर नेबरहुड थे शब्द, अभी कैसे शब्द आएंगे? आपण नाही का एकमेकांची वास्तव पुस्तक करतो, शेजार धर्म, यस। हा धर्म निरपेक्ष शब्दाला हेच आहे। धर्मनिरपेक्ष मध्ये धर्म शब्द काय? शेजार धर्म, मातृधर्म, पितृधर्म, भ्रातृधर्म, देश धर्म। तेव्हा एक गाणं होतं, बहुत फेमस गाणं था, देश देवन धर्मासाठी प्राण घेतल हाती। ऐकलं काय गाणं? शूर मी सरदार, मला काय कुणाची भीती। देश, देव आणि धर्म, हा धर्म हिंदू नाही, हा धर्म शेजार धर्म, मातृधर्म, पितृधर्म, बंधू धर्म, भगिनी धर्म, द रोल परफॉर्मन्सेस, and each individual in the nation has a role to perform. आणि तो देश धर्म। देश is not what the boundaries define you. मैंने इसीलिए पूछा कि यूपी का देश बन जाए तो क्या होगा?